Welcome dear students. Welcome to the Biology online tutorials. Dear class 12th, as in the previous tutorials, we had started with our chapter 6 and that was molecular basis of inheritance. And we were on the controversy that what acts as a genetic material. DNA, RNA, proteins, carbohydrates. So the first experiment that was done was very important experiment. It was transforming principle. Transforming principle that was performed by Griffith. An experiment conducted on the mice, right? With the help of bacteria Streptococcus pneumonia. I hope you all must have imagined मैं कौन से experiment की बात कर रही हूँ. Then उसके बाद we had gone through the biochemical characterization of the transforming principle. Because in the transforming principle, Griffith was unable to explain what actually is the genetic material. So, after the biochemical characterization, it come to know that it is the DNA that acts as the genetic material. The experiment performed by Avery, MacLeod and Carty. Now, the controversy has not stopped. Still, the scientists are fighting what actually is the genetic material. So here comes the second experiment, and that is Hershey and Chase experiment. So dear students, dear class 12, today I am going to discuss about Hershey and Chase experiment. Hershey and Chase experiment is the experiment which shows that it is the DNA only which acts as the genetic material. Hershey and Chase, they gave the unequivocal proof. What is meant by unequivocal proof? Unequivocal proof का मतलब होता है without any doubt. चलिए हम start करते हैं. So, Hershey and Chase experiment. They gave unequivocal proof. Unequivocal का मतलब क्या होता है? Without any doubt. Without any doubt, it is the DNA that acts as a genetic material. Now, the Hershey and Chase will make us understand that how DNA acts as a genetic material. What did they do? उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में क्या करा? पहले तो देखो, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं हमें पता होना चाहिए हमें रॉ मटेरियल क्या चाहिए. जैसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में रॉ मटेरियल चाहिए था मेनली माइस एंड स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, और उसके भी दो स्ट्रेन्स, आर स्ट्रेन एंड एफ स्ट्रेन. Now here in the Hershey and Chase experiment, we will take as a raw material bacteriophage. Bacteriophage. What is a bacteriophage? A virus that infects bacteria is known as bacteriophage. ठीक. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो वायरस है वो इन्फेक्शन कॉज करेगा. किसको कॉज करेगा? बैक्टीरिया को. कौन सा बैक्टीरिया? ई कोलाई. ई कोलाई इज द शॉर्ट फॉर्म. इसको फुल फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? एस्टेरिशिया कोलाई. ठीक है, आपको सबको पता है. तो बैक्टीरियोफेज हम लेंगे यहाँ पे, और बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन कॉज करने वाला है बैक्टीरिया को. तो चलिए पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज द मेन प्रोसीजर दैट वाज डन बाय Hershey and Chase. Number 1, it says some bacteriophage viruses are grown on medium that contain radioactive sulfur, and some bacteriophage they were grown on radioactive phosphorus. कई हमने जो बैक्टीरियोफेज थे उनको रेडियोएक्टिव फास्फोरस के ऊपर ग्रो कराया, और बाकी जो थे वो हमारे रेडियोएक्टिव सल्फर के ऊपर. ठीक है, व्हाट इज द मेन पर्पस फॉर दैट? चलिए अंडरस्टैंड करते रहिए, आपको सब समझ आएगा. वायरसेस ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फास्फोरस, दे कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए. क्यों? क्योंकि फास्फोरस इज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए. इफ यू रिमेम्बर हमने करा था डीएनए इज अ चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, एंड व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द डीएनए? दे आर शुगर, बेस एंड फॉस्फेट. तो इससे पता लग गया जहां पे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस होगा वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? रेडियो एक्टिव डीएनए. नेक्स्ट, viruses grown in the presence of radioactive sulfur, they will contain radioactive protein. क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सल्फर. सल्फर इज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आपको पता है द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी.
एंड उसके स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स, राइट। तो चलिए, सून आफ्टर द इन्फेक्शन, जैसी ही इन्फेक्शन होती है, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है हमारा इन्फेक्शन, द बैक्टीरियल सेल्स वर एजिटेटेड इन द ब्लेंडर टू रिमूव द वायरल कोड्स फ्रॉम द बैक्टीरिया। देखो मैं बताती हूँ आपको, जो हार्शी एंड चेज थे उन्होंने क्या करा, 3 स्टेप्स परफॉर्म कराए। दे परफॉर्म 3 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप वॉज इन्फेक्शन, सेकेंड स्टेप वॉज एजिटेशन और ब्लेंडिंग, एंड थर्ड स्टेप वॉज सेंट्रीफ्यूगेशन। आई एम रिपीटिंग अगेन, first step, infection of bacteriophage with the on the bacteriophage, which was a virus, on the bacteria E. coli. Second step, blending or agitation, so as to mix the products. कौन से products? वायरस एंड दी बैक्टीरिया, ताकि जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर हो जाए किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। थर्ड स्टेप इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन। इसमें हम क्या करेंगे? बैक्टीरिया और वायरसेस को सेपरेट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड द टर्म्स। ठीक, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। सो अब आप यहाँ पे बेटे एक और चीज मेंशन करेंगे कि द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड इन 3 स्टेप्स एंड द 3 स्टेप्स वर, नंबर 1 इन्फेक्शन, नंबर 2 agitation or blending, number 3 centrifugation। ठीक है, number 3 centrifugation। So let's draw the diagrams of Hershey and Chase experiment। So dear students, let's go through the diagram of Hershey and Chase experiment to make us understand very clearly how the experiment was done and that how the DNA acts as the genetic material। बेटा एक चीज और, जब भी आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है Hershey and Chase एक्सपेरिमेंट, या आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आता है कि हु गेव द अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सप्लेन इट। तो आपको पता होना चाहिए अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया है? Hershey and Chase ने। अगर आता है आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, तो वो किसने दिया था? ग्रिफिथ ने। तो चलो हम डायग्राम्स करते हैं। तो आपने ये डायग्राम जरूर बनाने हैं, ठीक है, अपनी नोटबुक्स में भी, ऑल्सो इन द एग्जाम्स। तो अब क्या हुआ कि इसमें 3 स्टेप्स जैसे मैंने आपको बताए थे। पहला स्टेप क्या था हमारा? फर्स्ट स्टेप वॉज इन्फेक्शन, सेकेंड स्टेप वॉज एजिटेशन और ब्लेंडिंग, थर्ड स्टेप वॉज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो चलो हम गो थ्रू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मैंने क्या ड्रॉ करा है? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ऑल्सो यू कैन रेफर टू योर एडिशनल बुक्स एंड दी एनसीईआरटी, वहां पे भी डायग्राम्स मेंशन है। ये हमारे पास बैक्टीरियोफेज है बेटा, दिस इज बैक्टीरियोफेज। ये वाला जो बैक्टीरियोफेज है, दिस इज रेडियो एक्टिव S35 लेबल्ड प्रोटीन, क्योंकि तुम्हें पता है जो सल्फर होता है दैट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। सो दिस इज रेडियो एक्टिव S35 लेबल्ड प्रोटीन। और ये वाला जो बैक्टीरियोफेज है, दिस इज रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32। 32 क्या होता है? इनका मास नंबर, लेबल्ड डीएनए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर क्या जो फॉस्फोरस होता है दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए। अभी हम देख रहे हैं सब कुछ। तो पहला क्या स्टेप हुआ हमारा? इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन में आप देख रहे हैं कि यही जो हमारे पास, देखो मैंने 2 अलग अलग बनाए हैं, ये 2 अलग अलग हमारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। यहाँ पे हम S35 को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम P32 को यूज कर रहे हैं टू क्लेरिफाई अस दैट इट इज द डीएनए ओनली विच एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट द प्रोटीन्स। चलो, तो पहला स्टेप हो गया आपका इन्फेक्शन। ये बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट कर रहा है, किसको इन्फेक्ट कर रहा है? ई कोलाई को। ठीक है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, दिस इज अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कौन इन्फेक्ट कर रहा है? बैक्टीरियोफेज, दैट इज अ वायरस। सेकेंड, ब्लेंडिंग और एजिटेशन। सेकेंड कौन सा है? ब्लेंडिंग और एजिटेशन। इसके अंदर क्या होगा? हम क्या करेंगे? हम उसको ब्लेंडर के साथ मिक्स करेंगे, घुमाएंगे, खूब अच्छे से घुमाएंगे। क्यों घुमाएंगे? ताकि जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, किसका जेनेटिक मटेरियल? बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल, वो इसके अंदर ट्रांसफर हो जाए। किसके अंदर ट्रांसफर? अभी तो इन्फेक्शन हुई है ना, बट जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर नहीं हुआ, तो वो ट्रांसफर कॉज करना है। तो यू कैन सी द जेनेटिक मटेरियल गेट्स ट्रांसफर्ड इन बोथ द केसेस। देन आता है आपका थर्ड स्टेप। जो
थर्ड स्टेप होता है हमारा, वो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, थर्ड स्टेप, पहला स्टेप क्या था हमारा, इन्फेक्शन। सेकेंड स्टेप कौन सा था हमारे पास, ब्लेंडिंग और एजिटेशन। और जो ये थर्ड स्टेप है हमारा, वो कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगेशन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। Centrifugation is a method of separation in which lighter and the heavier particles they get separated. ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसे सेपरेशन होगी, देखो मैं आपको समझाती हूँ। सेंट्रीफ्यूगेशन हो रही है, जब सेंट्रीफ्यूगेशन हो रही है, यही जो आपके ये जो अटैच हुए थे बैक्टीरियोफेज, दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम द इकोलाई। द बैक्टीरियोफेज दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम द इकोलाई। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि what happens actually, no radioactive S35, no radioactive S35 is detected in the bacteria। क्यों नहीं हुआ डिटेक्ट, क्यों बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कॉज नहीं हुई, क्यों बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर नहीं हुआ, बिकॉज it is not the protein which acts as the genetic material, rather it is the DNA which acts as the genetic material। तो जब हमने सेपरेशन करी, no radioactive S35 is detected in the bacterial cell। अगर ये जेनेटिक मटेरियल का काम करता प्रोटीन, तो it would have been present in the bacterial cell also। But आप देखेंगे कि ये जो रेडियो एक्टिविटी थी दैट वाज प्रेजेंट इन द सुपरनेटेंट। और सुपरनेटेंट क्या होते हैं हमारे, लाइटर पार्टिकल्स। और सुपरनेटेंट यहाँ पे है क्या, हमारे वायरस के पार्टिकल्स, बैक्टीरियोफेज। तो सुपरनेटेंट निकल गया। सुपरनेटेंट में यू विल सी दैट द रेडियो एक्टिविटी इज डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। कौन से, S35 में। बट वही मैं आपको दिखाती हूँ। आप सेंट्रीफ्यूगेशन में जब हमारा P32 की बात करते हैं, तो आप देखेंगे जब हमने सेपरेशन करी, जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करी, सुपरनेटेंट अलग हो गया, बैक्टीरियल सेल अलग हो गया। बट यू विल सी देयर इज नो, वेरी इंपॉर्टेंट, नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन द सुपरनेटेंट, बट रेडियो एक्टिविटी वॉज फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल। कौन से केस में, इन द केस ऑफ P32। ठीक है, क्यों, क्योंकि फास्फोरस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ DNA. Phosphorus is the constituent of DNA. So hence it proves that it is the DNA which acts as the genetic material, unequivocally resolved, that is without any doubt that it is the DNA which acts as the genetic material. So this is your Hershey and Chase experiment. ये 3 to 5 मार्क्स के 5 मार्क्स में आता है। आपको ये भी लर्न करना है अनइक्विवोकली किसने रिजॉल्व किया था डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, इट इज द Hershey and Chase। क्लियर, क्या यूज करा उसने, बैक्टीरियोफेज को यूज करा, किसके साथ यूज करा है, इकोलाई के साथ यूज करा है। एक चीज आपको पता होना चाहिए, जहां पे बैक्टीरियोफेज, जहां पे S35 होगा, मतलब वहां पे रेडियो एक्टिव प्रोटीन प्रेजेंट होगा। जहां पे P32 होगा, वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए, बिकॉज फॉस्फोरस इज फाउंड इन डीएनए एंड सल्फर इज फाउंड इन प्रोटीन। मेन बेसिक यही चीज थी और लास्ट में हमने इसी चीज को ऑब्टेन कर लिया। एंड जेनेटिक मटेरियल या रेडियो एक्टिविटी P32 वॉज डिटेक्टेड इन बैक्टीरिया, क्योंकि उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, उसके अंदर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ। बट इन केस ऑफ S35 देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर्ड, क्योंकि देखिए जो बैक्टीरियोफेज सेपरेट हो रहा है उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी आई, बट नो रेडियो एक्टिविटी वॉज डिटेक्टेड इन द बैक्टीरियल सेल। हेंस it is very clear that it is the DNA which acts as the genetic material. I hope आपको Hershey and Chase experiment समझ आया। Thank you dear students. Thank you and have a nice day.